I, Megha Saloni, Assistant Professor of MC Department, welcome Director Sir Dr. S.S. Tyagi, our guest Professor S.K. Mahajan Sir, and Dean Dr. Subhas Kumar Verma Sir, HOD MCA Dr. Naveen Kumar Sharma Sir, and faculty members and our dear students. I welcome you to this seminar. This is on topic of the business, innovation and sustainable development. Let me give you the brief introduction of Professor S.S. Tyagi Mahajan Sir, S.K. Mahajan Sir, I'm so sorry. Professor S.K. Mahajan is a retired scientist in CSIR, CERI, Pilani. He had 30 years of enriched experience of research. He has more than 15 patents and published more than 5 books. Professor S.K. Mahajan had worked with our Honorable Dr. APJ Abdul Kalam for development of neutron bomb detection. Sir is a mentor of many research-based startups. He has been awarded Young Scientist Award of India in 1973. He is currently providing STEAM mentorship support to IIMT Group for last decades. Now I request Director Sir, S.S. Tyagi Sir, Dr. S.S. Tyagi Sir to have some word. Good morning to all of you. Today's speaker, Professor S.K. Mahajan ji, Dean MBA, Dr. S.K. Verma ji, HOD MCA, Dr. Naveen Sharma ji, all faculty members and dear students. We are conducting this activity under the Entrepreneurship Development Cell, ED Cell of IIMT College of Engineering. In today's scenario, you all are going to become a professional. As a professional, you have to find out the problems of the society and to think how to resolve all these. When there is an innovative idea comes from your mind that can be turned into a project or some startup or some business kind of thing that can be changed into. So it is requirement of the day that you all have to learn all these things from the college itself. While after passing out from the college, it is difficult to think what to do, what not to do. We not only search for the jobs, we have to think about how to start an entrepreneur, how to become an entrepreneur, how to start your own business. Here at IIMT College of Engineering, we try our level best to give you maximum input about all these beyond your classroom teaching. So in this series, today we have requested Professor S.K. Mahajan ji to give you some tips about this. The topic is business innovation and sustainable development. So take maximum benefit out of it, and as maximum you just listen him carefully that what and think over it. Although things are available on the internet, most of the things, but when you get it from an experienced person like Professor Mahajan, definitely there is an advantage for you, benefited for your careers and all these things. So I congratulate the Department of MCA to organize this activity and wish you all good luck. Thank you very much. Now I welcome Dean MBA Dr. S.K. Verma Sir to have some word. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Well, it's a very good opportunity for me to share my experiences here in the last 6 months that I have been working here. And before that, I must thank to the director sir for his inspiring, in fact, few words to the students as well as the faculties who are sitting over here. Actually, whether you go in for job or do some self-enterprising activities, it is the innovation that actually makes a difference between a good performer and the bad performer. This has to be understood. If you want to excel in career also, you will have to be innovative one.
And whatever organization you are going to be associated with, you will have to give something, different from the ordinary being. Only then your packages, salary and growth will be, will be different from the other people, general masses. So to be peculiar, to excel in professional career, you will have to be innovative. And business is something which involves generation of money and money in the economy. And when you are associated with an organization, you will have to contribute in terms of revenue. Only then your value addition will be there, your salary will be increased. So what you pay to the organization pays a part of the bit out of that to you in terms of reward and whatever salary and perks are there. So it has to be understood in mind. So you will have to be innovative while working for some other organization. You will have to be innovative while doing your enterprising activities. In fact, innovation is spotting around, looking out for some opportunities, unique sort of opportunity which is not existent in the market, and trying to capitalize on that, converting into revenue generation. So this is what you have to do that. And you are lucky that the institution is so focusing on improving the quality of innovation teaching for the student, that I think that everybody is going to benefit out of that. During the 2 or 3 years of the stay over here, you will have lots of offline, online, grooming by the senior scientists like Mahajan Sir and many others who will be taking your specialized, in fact, topic-based lectures, motivational speeches, all aimed at trying to steer up the innovation within yourself, so that you could contribute not only to your career growth but also to the growth of the society. So at last, without wasting time, I am thankful to Naveen Sharma sir also, very dynamic, in fact, HOD I have interacted over here, in fact, and he has been so personally taking round the clock care for each and every student for the academic as well as non-academic problems related to the student. Thanks to the faculty members who have organized this event so successfully. And last but not least, I welcome Mahajan sir. Very good morning to all my dear faculty members and young upcoming entrepreneurs who are studying in MCA. Very good morning to all of you. So today, here I am to discuss to you, or rather talk to you, business, innovation and sustainable development. So instead of it should be one-sided, कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें. Let's make it interactive. मैं बोलूँगा, आप कुछ पूछेंगे, मैं पूछूँगा, आप जवाब देंगे. Something like that, so that we all grow together. Okay? So, fine. This seminar topic consists of 4 words. One is common, that is business. Business, innovation and sustainable development. So before I come to business, I start other way, sustainable development. इसके लिए एक पुराने समय की एक स्टोरी जो भी आप लोगों ने भी बचपन में सुनी होगी. अगर किसी के पास एक मुर्गी है जो कि रोज एक सोने का अंडा देती है, एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इसका पेट फाड़ के इकट्ठे सारे सोने के अंडे क्यों न ले लूं. मैंने पेट फाड़ दिया. Will I get सोने का अंडा नेक्स्ट टाइम? Yes or no? क्यों? Now she is no more alive. एक बार उसने अंडा दे दिया और खत्म हो गया वो सोने का. So that is what precisely it means sustainable development. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैंने सारा ले लिया और बाद में खत्म हो गया बिजनेस. नो, इसको आप दूसरे तरह से सोचिए. पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? यस, ट्री. वेरी गुड. एक दिन मेरे दिमाग में आया कि सारे जंगलों को काट दो और सारे देश में पेपर इंडस्ट्री डाल दो. हो सकता है ना? यस और नो? बट आगे क्या होगा? What will happen to environment and ecology? Will it be sustainable? No, sir. Can we survive? No. Will the business sustain? So, let's focus onto the business which leads to
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स विच एग्जिस्ट फॉर एवर, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि आज मैंने खूब सारा पैसा अर्न कर लिया, आने वाले 5 साल तक मेरे पास रॉ मटेरियल ही ना मिले। और जब बिजनेस का रूल है, जब सप्लाई चेन सप्लाई बहुत हो गया, डिमांड कम है, आई एम लॉस मेकर और प्रॉफिट मेकर। बहुत सारा पेपर इकट्ठा कर लिया, खरीदार तो सीमित है, सो मेरे को अपनी कीमत घटाना पड़ेगी। सो दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स कम टू बिजनेस इनोवेशन। आप लोग जब यहाँ एडमिशन लेने आए थे, आपके पेरेंट्स आए होंगे साथ में, आप आए थे, आते ही आपने एडमिशन सेल में एक पॉइंट हर एडमिशन लेने वाला पूछता है, क्या हाउ अबाउट प्लेसमेंट, यस और नो? क्यों? कभी किसी ने यह सोचा कि यस इज देयर एनी करियर काउंसलिंग सेल जहां पर कि हम एंटरप्रेन्योर भी बन सके? प्रॉब्ली आप में से किसी ने भी ये शायद प्लेस एडमिशन सेल में इंक्वायरी नहीं की थी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप सोचिए, व्हाई बी ए जॉब सीकर, व्हाई कांट आई बी ए जॉब गिवर? बन सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज है। आप कहेंगे पैसा कहां है? एग्री। आपके एमसीए के 2 ग्रुप्स ने अपना बिजनेस शुरू किया है, उनके नाम जानते हो? नहीं। वन इज ग्रुप हेडेड डेविड स्टीवन एंड अनदर इज बाय पूजा शर्मा। आप लोग तो नहीं सोच सकते, वो बात हो रही कि वो बीसीए सेकंड ईयर से ही हमारे साथ अटैच थे, और आप लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि आप कुछ करेंगे, इनोवेशन में करेंगे, तो आपको अटेंडेंस और इसके लिए मैं सोचता हूं कि एचओडी इज वेरी कोऑपरेटिव। सिर्फ वो चाहते हैं कि टाइमली उनको ब्लैक एंड व्हाइट में मिल जाए। दैट इज माई हेडेक, नॉट यूअर्स, सो दैट यू आर प्रोवाइडेड अटेंडेंस। वहां भी आएंगे, आप काम कीजिए, जरूरी नहीं कि आप को C++, Java, .NET, if you want to work on mechanical things, electronics, hardware, you can. It is not confined to software. आप लोग जब MCA में एडमिशन लिए, VCA में लिए, क्या सोचा था? Yes, Java, .NET is my domain. मेरे को इसके बियॉन्ड नहीं सोचना है, यही सोचा था ना? Yes or no? अब जो पूजा शर्मा जो बिजनेस कर रही, वो क्या करती है जानते हो? शी इज सेलिंग अपैरल्स, और उसके अंदर उसने एक इनोवेशन डाला है। क्या? फीमेल सिक्योरिटी सिस्टम के अटैच्ड इनर गारमेंट्स, दैट इज एंटी रेप डिवाइस दैट हैज बीन डेवलप्ड एट IIMT College of Engineering by BTech ECE students. Okay, nobody used it. Unfortunately, both the students died in an accident. But इसका इस्तेमाल पूजा ने करा. So what? Anybody, जो भी प्रोडक्ट बना है, आप आइए और अपना बिजनेस को आप स्टार्टअप के रूप में कर सकते हैं. Now, let's come back apart from this. What is innovation? Any of you, any student? अभी आपके वर्मा जी ने बताया इनोवेशन के बारे में, आप लोगों ने क्या समझा? इनोवेशन क्या होता है? Anyone? No problem. गलत बोलोगे तो भी चलेगा. Yes. हिंदी बोलो यार, no problem. हाँ बोलो बच्चे. So making anything new and creative. हाँ. Perfect. Innovation means something new. Fine. इस न्यू के अंदर a product can be new or product can be existing, but it can be techno-economically supportive. ये मोबाइल है, मान लो मैंने 20,000 का खरीदा, फाइन. अगर मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर दूं जो कि विद दिस सेम फीचर्स, इसको मैं 10,000 में मार्केट में लॉन्च करूंगा, इज इट नॉट इनोवेशन? बोलो यार. तो आप इनोवेशन का मतलब
हमेशा ये नहीं होता कि नया। हाँ? अब देखिए, उस लड़की ने अपना बिजनेस अपैरल के लिए उससे शुरू किया, सलवार सूट और जो भी आप लोगों के डिजाइन वेयर वगैरह, डिजाइनर वेयर वगैरह होते हैं। अब उसके अंदर उसने इस फीचर को ऐड कर दिया, इट इज अ नॉवेल्टी, दैट इज इनोवेशन, कि बिजनेस को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको हमेशा ये सोचना है, मैं ये नहीं कहता कि आप में से हर कोई बिजनेस नहीं बनेगा, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अपना माइंड सेट तो रख सकते हैं। जब आप जॉब में जाते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं, जैसे कि नॉर्मली मैनेजमेंट डिफाइन करता है, एक वो जो नौकरी करते हैं, एक वो जो काम करते हैं। Anyone can differentiate between the two? Anyone? हाँ बताओ। नौकरी हम दूसरों के लिए करते हैं, काम के लिए। सही है, नौकरी का मतलब मीटिंग द KRA इज नौकरी, बट अपार्ट फ्रॉम KRA मीन्स की रिजल्टिंग एरिया, उसके अतिरिक्त अगर मैंने कुछ अपनी ओर से करा, दैट इज समथिंग, इसको बोलते हैं काम करना। और उस काम करने से आपकी ग्रोथ होती है, और नौकरी करने से सिर्फ सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलने से एनुअल इंक्रीमेंट या जो भी लगना होता है लग जाएगा। बट अगर आप काम करेंगे, बिलीव इट, यू मे बी गिवन मेरिट इंक्रीमेंट, मेरिट प्रमोशन और व्हाटएवर आउट ऑफ टर्न इंक्रीमेंट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ काम करना। और काम कब करेंगे? जब आपका माइंडसेट इस तरह से होगा कि यस, अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग देयर इज समथिंग व्हिच आई कैन थिंक ऑफ। मैं नहीं जानता कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, बट उसके लिए भी अच्छा करते हैं, आप पढ़िए। आइंस्टीन यूज्ड टू से देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड स्कोरिंग गुड ग्रेड्स इन यूनिवर्सिटी। आपके 90% आ गए, ओके फाइन, बट इफ यू कैन नॉट राइट सिंपल 4 लाइन कोड्स इन पाइथन, फिर तुम्हारे MCA का फायदा क्या हुआ मेरे को, बताइए आप। डज इट मेक सेंस? अब आते हैं बिजनेस पर। बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? जरूरी नहीं कि हमेशा आप प्रोडक्शन ही करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। ऑफ कोर्स इट इज द नीड ऑफ द आवर। हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिया को वर्कशॉप ऑफ द अर्थ बनाना चाहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हब, विच चाइना हैड दिस प्रिविलेज। वन इज प्रोडक्ट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, कौन बताएगा? What is trading? ट्रेडिंग का मतलब आप शॉप पे गए, पीटर इंग्लैंड शॉप पे गए, 2 शर्ट 1 ट्राउजर पसंद आ गया, अब खरीद लाए। तो जिस फ्रेंचाइजी पे गए थे, दैट इज ए ट्रेडिंग अफेयर। जिन्होंने बनाया है, दैट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपका जो अफेयर था, इट वाज B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नाउ थर्ड इज सर्विस। अब सर्विस सेक्टर क्या होता है? जो आपका नेट, मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट, नेटवर्किंग वगैरह वगैरह, ये सब नेट में आता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर कोर स्ट्रेंथ। आप कहेंगे कि हम तो MC वाले, हम तो कुछ बना ही नहीं सकते अपने हाथ से। तो जो डेविड स्टीवन है आपका अपना कलीग, सेकेंड ईयर में ना सर? हाँ, he is working on robotics। वो क्या बनाता है? ड्रोन। और अभी के बजट में आपने सुना था निर्मला सीतारमण ने जो प्रेजेंट किए थे, व्हाट आर द 5 फोकल सेक्टर्स वेयर इंडियन बजट विल बी फोकसिंग ऑन। 1, ड्रोन, इट्स इंपोर्ट इज फिनिश्ड, बैन। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ड्रोन के बारे में सोचते हैं, अबाउट इट्स वेरियस एप्लीकेशंस? दैट इज वन। तो ये रुद्रा रोबोटिक्स के नाम से आपका अपना कलीग है जिसने शुरू किया है।
उसका ऑफिस इधर ही है हमारे कैंपस 2 में। दूसरा, इसका क्या एप्लीकेशन है? एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, ड्रोन का। डिफेंस, दैट इज अनदर सेक्टर। इस तरह से देयर आर 5 सेक्टर्स जहां पर कि आप अपना इनोवेशन करें, बिजनेस करें। और अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की है, कौन सी? सेमीकंडक्टर पॉलिसी। Sir, because our association with Bhajan is more than 10 years, maybe I think 15 to 16 years before we met in another institute, and since then we all together somehow working in some sense. इनोवेशन की हम बात कर रहे थे, जैसे अभी अगर इनोवेशन की हम बात करें ना, जैसे कि बच्चों के पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आ जाए ये भी एक इनोवेशन है। अभी तो हम कहें मतलब जैसे अनुज पूछ रहा था ना कि आइडिया कहाँ से सोच के लाएं, आइडिया कहीं से सोचना नहीं है, जस्ट माइन्यूटली ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही होगी, आपको नहीं दिखाई पड़ रही होगी, तो कहने का मतलब कोई बंदा होगा, जैसे मान लो आपका कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा या कुछ होगा, वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा, उससे जाके मिलो, उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो। तो इस तरह से आपको ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा। एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव ऑन द गवर्नमेंट साइड आल्सो, मतलब सिंस लास्ट आई थिंक 4 to 5 years। आइडियाथॉन, हैकाथॉन, इसका पर्पस ही केवल ये है कि गवर्नमेंट की साइड पे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है, जस्ट गो एंड सॉल्व दैट एंड यू विल बी द विनर। यू आल्सो हैव द वेरी गुड प्राइजेस फॉर एंड अवार्ड एंड ऑल। तो मैंने कहा था कि एक बार क्लास में डिस्कस किया है कि कंपनी या तो आपके पीछे भागे या आप कंपनी के पीछे भागो। या तो आपने सोच रखा है कि आपने केवल जॉब करनी है, या फिर आपके दिमाग में कुछ है कि मैं क्यों नहीं बन सकता, why I cannot be an entrepreneur which can provide maybe 10 to initially 10 to 15 jobs or maybe below that 3 to 5 people, so I can just provide a job। उसके बाद तो ग्रोथ होता ही है ना। और आपका जो है इनोवेशन, जैसे था ना कि इनोवेशन इज नॉट ओनली द न्यू थिंग, इट कैन बी अ मॉडिफाइड थिंग आल्सो। जैसे सर ने कहा ना, हम किसी के प्राइस को भी अगर रिड्यूस करते हैं, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को, वो भी एक हमारा इनोवेशन है। अगर बल्ब जैसे एलईडी का है, अगर इनिशियली आप देखते हो कि जनरल में 100 रुपीज कॉस्ट होती है, if you people can just do something new which can just reduce the cost up to the 50 rupees or maybe up to 60 rupees only, 100 रुपए के 10, this is the innovation सर 100 रुपए के 10 बल्ब। हाँ, तो that is the thing only जो है ना, कि उसमें भी क्या है ना कि it is now the innovation is branch and course independent we can say। if you are from the software, if you are from the hardware, हो सकता है कि आप इनोवेशन करो जो कि मैकेनिकल स्ट्रीम का हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। जैसे एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था, कहीं साउथ का था कि वो जो नारियल तोड़ते हैं, तो नारियल का ट्री बहुत लंबा होता है, तो उसको ऐसे ही चढ़ते हैं उसको जो है करके ना, तो उसने एक जो है ना मोटर बनाई और जो है ना उसने ग्रैब करके जो है ना उसके साथ वो बहुत तेजी से चढ़ जाता है ना। जितने टाइम में अगर कह सकते हो कि दिन भर में मेरे ख्याल से वो टास्क करता होगा, उसका 10 टाइम्स ज्यादा टास्क वो उस मशीन के साथ कर लेता था करके जो है। और उसको बनाने वाला बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं था। कहते हैं ना कि इनोवेशन कोई भी कर सकता है, हो सकता है कि वो इंजीनियर ना हो, उसने हो सकता है कि मैथ्स भी ना पढ़ी हो, उसके दिमाग में एक चीज आई और उसने उस चीज को बना दिया कि भाई कुछ ऐसा है कि केवल पर्पस क्या है, यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ने का है और स्पीड अप होके चढ़ने का है। तो उसने एक मशीन यूज की, उसको जो है ना ग्रैपिंग चाहिए थी कि भाई नारियल के पेड़ को जो ऐसे पकड़ के अच्छी तरह से स्लिप ना हो और सारी चीजें, तो उसने वो चीज कर दी। एक बच्चे ने, मतलब बहुत एज नहीं थी, मेरे ख्याल अराउंड 15 to 16 ईयर ओनली, और मे बी द स्टूडेंट ऑफ 10 और 12 क्लास, उसका था कि फार्मिंग बैकग्राउंड से था। तो फार्मर जो था, उसका जो हाउस था और उसका जो फील्ड था वो बहुत अपार्ट था। वहाँ से जो है ना कि सुबह उसके फादर को 3 या 4 बजे ना बस ये देखने के लिए जाना पड़ता था कि फील्ड में जो है ना इरिगेशन और मतलब पानी वगैरह लगना जो भी करके ना, और उसके लिए उसने फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसके थ्रू जो है ऑटोमेटिकली वो वहाँ से मशीन ऑन हो जाती थी, मोटर ऑन हो जाती थी, और पता था कि डेफिनेटली आइडिया हो जाता है कि एक टैंक या फिर एक फील्ड जो है ना कितने ड्यूरेशन में फिलअप हो जाती है, उसके बाद वो ऑफ हो जाती थी। यानी कि पर्पस हो गया अननेसेसरी, ये बटन हट गया कि सुबह सुबह जाने का। इसी चीज को कहें कि कैटल्स वगैरह घुस जाते हैं आपके उसके क्रॉप्स के उसमें, उसका भी हम अगर ड्रोन के एप्लीकेशन की बात करें तो ड्रोन के साथ एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वी कैन नॉट से राइट नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी हैव विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन।
सर्वेलेंस सिस्टम हो सकता है, एग्रीकल्चर की सेंस में गए हैं तो चाहे आप वाटर इरिगेशन में इस्तेमाल कर लें, या फिर उसका सेफ्टी जो आप कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे जानवर वगैरह जो घुस जाते हैं उसके लिए भी आप जो है भाई कहीं से अगर ड्रोन से अगर किसी को मोबाइल पे अगर एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है उसने देख लिया कि भाई कोई नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी का बर्डन बच गया। यानी कि प्रॉब्लम आपके आसपास ही है, प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। सिंपल सेंस में कहें कि अगर मान लो वाईफाई एसी का कंसेप्ट चल रहा है, अभी प्रोसेस में ही है वो करके, कि मतलब जैसे कि इस कमरे में मालूम मैं कहता हूँ 2 ही लोग बैठे हैं, तब भी ये दोनों एसी चलेंगे, कंजप्शन करेंगे, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो मे बी इफ अकॉर्डिंग टू दैट स्मार्ट एसी सिस्टम वी कैन से कि अगर जो है कि अगर 2 लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कूलिंग करे, ठीक है, अगर ज्यादा लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कूलिंग करे। मतलब कहने का मतलब हाउ मच एनर्जी वी कैन जस्ट सेव, बिकॉज एनर्जी इज आल्सो सम प्रेशियस थिंग व्हिच वी शुड स्टोर इन अ सेंस। संजय जैसे कहा कि सिलिकॉन, अब ये चीज जरूरी थोड़ी कि सिलिकॉन अगर वर्क किसी को करना है तो वो एमसीए का नहीं हो सकता या आईटी का नहीं हो सकता। आपके दिमाग में अगर कुछ कहते हैं ना फितूर है, तो आप कहीं से भी ना होते हुए इस फील्ड के भी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग जब से पॉलिथीन खत्म हुई, अभी तक पॉलिथीन खत्म नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी एक इकोनॉमिकल पैकेजिंग मटेरियल अभी तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, ठीक है। जो कागज वाला जो चल रहा है वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी तक जो पैकेजिंग यूज करते थे फाइबर की या प्लास्टिक की, वो उसको छोड़ नहीं रहे करके जो है वो उसको फिर भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं और वो शायद थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए वो अभी भी जब तक बिल्कुल बैन नहीं होगा तब तक उसको यूज करते रहेंगे। तो प्रॉब्लम आपके पास ही है। जैसे कि अगर जैसे एक बार अभी यहाँ पर हुआ था, एक इंटरव्यू नहीं करवाया था, एक बहुत अच्छा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कराया था कि आप जैसे कहीं के भी हो, मालूम मैं कहता हूँ कोई बिहार से है, कोई अलीगढ़ से है, कहीं से भी है, आपने देखा कुछ इंडस्ट्रीज आपके आसपास कौन चल रही है, लेकिन वो ट्रेडिशनल में फॉलो करती आ रही है तब से, ठीक है। आपके पास दिमाग में कुछ आइडिया आया कि भाई इनका कुछ है, मान लो इनका कोई प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, जैसे अलीगढ़ के ताले की बात करें ना, तो मेरे ख्याल से तब से पॉपुलर है जब से शायद मैं भी बॉर्न नहीं हुआ था, उससे पहले से, ठीक है। लेकिन है क्या, हैवी है, लाइट वेट नहीं है और सारी चीजें हैं जो भी है, या फिर उनका पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जिसकी वजह से शायद उनकी परचेज उतनी नहीं हो पाती जितना कि हरसन और ये सब जो है जितना अपना मार्केटिंग करते हैं करके जो है। तो आप उनको कुछ सॉल्यूशन दे सकते हो, कुछ अट्रैक्टिव बना के, या फिर कुछ जो उनको दिक्कतें आ रही है उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके साथ जो है आपका, तो बस दैट इज द इनोवेशन।